ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कनैक्शन विद गीत। उम्मीद है ਤੁਹਾਡੀ प्रिपरेशन बहुत ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਟ ਮੀ ਆਸਕ ਯੂ ਸਮਾਲ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਟੀਚਰ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇੱਕ ਵਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੂਟ, ਸਟੈਮ ਤੇ ਬੇਸ ਤਿੰਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਕਨਸੈਪਟਸ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। पर आज के लैक्चर ਨੂੰ देख के आई होप ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਰੂਟ, ਸਟੈਮ, ਬੇਸ, ਅਫਿਕਸਿਸ ਦੇ ਟਾਈਪਸ, ਐਲੋਮੋਰਫਸ, ਜ਼ੀਰੋਮੋਰਫਿਮ, ਮੋਰਫੋਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਤੇ ਵਰਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਸ। ਤੇ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੂਟ, ਸਟੈਮ ਤੇ ਬੇਸ ਇਹ ਮੋਰਫੋਲੋਜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਫੇਵਰੇਟ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। PPSC, UGC ਨੈਟ ਤੇ MA ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਸਮਝਣਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰੂਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਟ ਵਰਡ ਦਾ ਉਹ ਕੋਰ ਮੋਰਫਿਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਮੇਨ ਲੈਕਸੀਕਲ ਮੀਨਿੰਗ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੂਟ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਰੂਟ। ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਵਰਡ ਵਾਂਗੂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੈਪੀ, ਕੇਅਰ, ਪਲੇ, ਟੀਚ ਜਾਂ ਅਗਰੀ। ਬਾਉਂਡ ਰੂਟ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਰਿਸੀਵ, ਕਨਸੀਵ ਜਾਂ ਡਿਸੀਵ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਇਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਵਰਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਕਸੀਕਲ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹੀ ਕੈਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਉਂਡ ਰੂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। PPSC ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਨਰਲੀ ਫ੍ਰੀ ਰੂਟ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਉਂਡ ਰੂਟ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਅਕੈਡਮਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਨਹੈਪੀਨੈਸ ਨੂੰ ਵੰਡੀਏ ਤਾਂ ਅਨਹੈਪੀ ਤੇ ਨੈਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਅਨ ਸਿਰਫ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮੀਨਿੰਗ ਐਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੈਸ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਨਾਊਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਕਸੀਕਲ ਮੀਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੈਪੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਰੂਟ ਹੈ ਹੈਪੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲ ਮੀਨਿੰਗ ਅਗਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸੋ ਰੂਟ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਅਗਰੀ। ਤੇ ਕੇਅਰਲੈਸ ਵਿੱਚ ਕੇਅਰ ਹੀ ਰੂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਸ ਸਿਰਫ ਐਬਸੈਂਸ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। एग्जाम टिप याद रखो, जिवें अगर क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द रूट इन द केयरलैसनैस, तो अपना आंसर होएगा केयर। हुण आपां आउंदे हां स्टैम ते, जिथों स्टूडेंट सब तो ज़्यादा कन्फ्यूज़ होंदे ने। स्टैम वो फॉर्म हुंदी है जिस दे नाल इनफ्लैक्शनल मॉर्फीम अटैच हुंदा है, मतलब प्लूरल, टेंस, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री या पोजेसिव्स जिस फॉर्म दे नाल लगदे ने वो अपना स्टैम हुंदा है। कई बार रूट ते स्टैम सेम हुंदे है ते कई बार डिफरेंट हुंदे ने। जिवें बुक्स वर्ड ले लो, बुक प्लस एस, प्लूरल एस बुक ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਰੂਟ ਤੇ ਸਟੈਮ ਦੋਵੇਂ ਬੁੱਕ ਹੀ ਨੇ। ਪਰ ਟੀਚਰਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚ ਰੂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਕਸੀਕਲ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਕੈਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਲੂਰਲ ਐਸ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਟੀਚ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਟੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਟੈਮ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਟੀਚਰ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਟ ਵਰਕ ਹੈ, ਸਟੈਮ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਟ ਡਰਾਈਵ ਹੈ ਤੇ ਸਟੈਮ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਐਵਰੀ ਸਟੈਮ ਇਜ਼ ਅ ਬੇਸ ਬਟ ਐਵਰੀ ਬੇਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਨੈਸੈਸਰਲੀ ਅ ਸਟੈਮ। ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ UGC ਨੈਟ ਤੇ MA ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਵਰੇਟ ਕਨਸੈਪਸ਼ਨਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬ੍ਰੌਡ ਟਰਮ ਹੈ। ਬੇਸ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਿਕਸ ਅਟੈਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਇਨਫਲੈਕਸ਼ਨਲ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ। ਬੇਸ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਰਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਲ ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੈਪੀ ਜਦੋਂ ਅਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈਪੀ ਬੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਨਹੈਪੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨੈਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਅਨਹੈਪੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਅਗਲਾ ਫਿਕਸ ਰਿਸੀਵ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਬੇਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਰੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਯੂਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੀਯੂਜ਼ ਬੇਸ ਬਣ ਕੇ ਏਬਲ ਨਾਲ ਰੀਯੂਜ਼ੇਬਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਮਰੀ ਟ੍ਰਿਕ, ਰੂਟ ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਮੀਨਿੰਗ, ਸਟੈਮ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫਲੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੇਸ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਰਮ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਿਕਸ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਬ੍ਰੌਡ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚ ਰੂਟ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਸਟੈਮ ਹੈ, ਪਰ ਟੀਚ ਤੇ ਟੀਚਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬੇਸ ਵੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅਫਿਕਸ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਹੀ ਰੂਟ ਹੈ, ਸਟੈਮ ਤੇ ਬੇਸ ਤਿੰਨੋਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਟੀਚਰਸ ਵਿੱਚ ਰੂਟ ਤੇ ਸਟੈਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ। ਇਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਫੇਵਰੇਟ ਟਵਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
चलो एक प्रैक्टिस देखते हैं। रीराइटिंग विच रूट स्टैम ते बेस आइडेंटिफाई करो। राइट रूट है, रीराइट स्टैम है, क्योंकि अगर प्लूरल या कोई इन्फ्लेक्शन लगानी होवे तो वो रीराइट दे नाल लगेगी। ਤੇ या रीराइट बेस भी है क्योंकि ING इस दे नाल अटैच हो रहा है। रीराइटिंग पूरा वर्ड भी अगले डेरीवेशन के लिए बेस बन सकता है। एक कॉमन मिसटेक है कि कई स्टूडेंट सोचते हैं कि रूट ते स्टैम हमेशा सेम होंगे है। ये सच नहीं है। जो डेरीवेशनल अफिक्स प्रेजेंट ना होवे जिमें बुक्स, वर्कड, कैट्स, तो रूट ते स्टैम सेम हो सकते हैं, पर टीचर्स, वर्कर्स, काइंडनेस या डिसएग्रीमेंट दे विच ये अलग होंगे ने। एक छोटा जिहा आपां क्विज करते हैं। रूट इन डिसएग्रीमेंट अग्री, स्टैम इन टीचर्स टीचर, बेस इन रीयूजेबल बिफोर एडिंग एबल इज रीयूज। हुण रूट स्टैम ते बेस के कॉन्सैप्ट आई होप क्रिस्टल क्लीयर हो जाने चाहिए हैं। हुण आपां गल करते हैं अगले टॉपिक ते आउने हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ अफिक्सिस। अफिक्स एक बाउंड मॉर्फिम होंदा है, मतलब यह इंडिपेंडेंटली वर्ड वजों यूज़ नहीं हो कर सकते। आपां इसनूं हमेशा किसी रूट स्टैम या बेस के नाल अटैच होना पैंदा है। इंग्लिश विच मेनली 4 टाइप के अफिक्सिस आपां डिस्कस करते हैं, प्रीफिक्स, सफिक्स, इनफिक्स ते सरकमफिक्स। प्रीफिक्स वर्ड के शुरू विच लगते हैं तो नॉर्मली वर्ड दे दा लैक्सीकल कैटेगरी नहीं बदलते, पर मीनिंग जरूर बदल सकता है। एग्जाम्पल जिवें अनहैप्पी, रीराइट, इम्पॉसिबल, डिसएग्री, प्रीव्यू, नॉन फिक्शन, इनएक्टिव, इररेगुलर। कॉमन प्रीफिक्सेस किहड़े-किहड़े हैगे आ? अन, नॉट, डिस, ऑपोजिट, री, अगेन, प्री, बिफोर, मिस, रॉन्गली, नॉन, विदाउट, एंटी, अगेंस्ट, ओवर, एक्सेसिवली ते अंडर, इनसफिशिएंटली। सफिक्स वर्ड दे एंड च लगते हैं तो वर्ड इंग्लिश के भी सब तो ज़्यादा प्रोडक्टिव अफिक्सिस सफिक्सिस ही होंगे ने। एग्जाम्पल जिमें टीचर, हैप्पीनेस, क्विकली, केयरफुल, चाइल्डहुड, गवर्नमेंट, काइंडनेस, रीडर, कंफर्टेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट है कि इंग्लिश विच सारे इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम सफिक्सिस होंगे है। आप लास्ट वीडियो च भी कीता सी। प्लूरल्स एस, पास्ट टेंस ED, थर्ड पर्सन सिंगुलर एस, कंपैरेटिव ER, सुपरलेटिव EST, प्रेजेंट पार्टिसिपल ING ते पास्ट पार्टिसिपल EN। इंग्लिश विच कोई इन्फ्लेक्शनल प्रीफिक्स नहीं होंदा, ये डायरैक्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन भी बन सकता है। इनफिक्स वर्ड के विचकार इंसर्ट होंगे है। इंग्लिश विच ये रेगुलर ग्रामैटिकल प्रोसैस नहीं, फॉर्मल मॉर्फोलॉजी विच ऑलमोस्ट एबसेंट है, पर इनफॉर्मल स्पोकन इंग्लिश के विच एम्फसिस लई यूज़ होंदा है। फॉर एग्जाम्पल एब्सोल्युटली, फैन फ्रीकिंग टैस्टिक, अनफ्रीकिंग बिलीवेबल। इत्थे ब्लडी ते फ्रीकिंग मिडल विच इंसर्ट होए ने, इन्हां नूं आपां एक्सप्लेटिव इनफिक्सिस कहने आ ते ये स्टैंडर्ड ग्रामर का हिस्सा नहीं है। एग्जाम टिप, विच लैंग्वेज रेगुलरली यूजेस इनफिक्सिस, तो आंसर होएगा टैगलॉग, इंग्लिश नहीं। सरकमफिक्स अफिक्स ते दोनों हिस्से इकट्ठे बिगनिंग ते एंड ते लगते हैं। इंग्लिश विच कोई प्रोडक्टिव सरकमफिक्स नहीं होंदा, पर जर्मन दे विच कॉमन है, जिवें मैचिन इन जैमेचिच या लाइबन इन गैलब। इत्थे GE ते T एक पेयर की तरह काम करते हैं। क्विक रिकैप करते हैं। प्रीफिक्स बिगनिंग दे विच, सफिक्स एंड विच, इनफिक्स मिडल दे विच ते सरकमफिक्स बिगनिंग ते एंड विच इकट्ठे। एक क्विज भी जिवें अनबिलीवेबल विचों अफिक्सिस आइडेंटिफाई करो। अन प्रीफिक्स है, एबल सफिक्स है, मतलब इको वर्ड विच 2 अफिक्सिस हो सकते हैं। ये पॉइंट स्टूडेंट्स अक्सर मिस कर देंगे है। एलोमॉर्फ्स की आपां गल करिए, एलोमॉर्फ्स एक ही मॉर्फिम के डिफरेंट फोनोलॉजिकल फॉर्म्स होंगे ने, मीनिंग सेम फंक्शन सेम, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन बदलती रहती है। एलोमॉर्फ्स की चॉइस स्पैलिंग ते नहीं, फोनोलॉजिकल इन्वायरमेंट ते डिपेंड करती है। प्लूरल मॉर्फिम ते 3 कॉमन एलोमॉर्फ्स है, जिवें कैट्स विच एस, डॉग्स विच ज ते हॉर्सिस विच इज। प्रोनाउंसिएशन अलग है, पर मीनिंग हमेशा इको प्लूरल ਲਈ ही ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ है। इसी तरह पास्ट टेंस ED ਦੇ ਵੀ 3 एलोमॉर्फ्स होंगे ने, वॉकड विच ट, प्लेड विच ड ते वांटेड विच इट। मैमरी टिक है कि जिमें फोनीम्स की एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन एलोफोन्स होंदी है, वही रिलेशनशिप मॉर्फीम्स ते एलोमॉर्फ के विचकार होंदा है। एग्जाम क्वेश्चन जिवें आंदा है प्लूरल मॉर्फीम के किन्ने कॉमन एलोमॉर्फ्स होंगे ने, तो आंसर होएगा 3, स, ज ते इज। जीरो मॉर्फिम की गल करिए, जीरो या नल मॉर्फिम वो है जिहड़ा ग्रामेटिकल मीनिंग एक्सप्रैस करता है बिना कोई विजिबल या ऑडिबल अफिक्स ऐड किए। ग्रामर चेंज होंदी है पर कोई साउंड ऐड नहीं होंदी। फॉर एग्जाम्पल शीप, सिंगुलर भी है, प्लूरल भी। वर्ड
बिल्कुल सेम रहिंदा है। इसे तरीके नाल डियर, एयरक्राफ्ट ते सीरीज़ भी। फिश भी कई कॉन्टैक्स्ट में सेम रह सकता है, पर साइंटिफिक या स्पैसिफिक कॉन्टैक्स्ट में फिशेस भी यूज़ हुंदा है। इसलिए फिश नूं हमेशा फिक्सड एग्जाम्पल दे नाल ना समझिया जाए। याद रखो जीरो मॉर्फीम हर नाउन ते अप्लाई नहीं हुंदा। कैट कैट्स, डॉग डॉग्स, बुक बुक्स विच विजिबल प्लूरल मार्कर लगता है। ये सिर्फ कुछ इररेगुलर नाउन तक ही सीमित है। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੋਰਫੋਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ। ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਫਿਕਸ ਅੱਜ ਵੀ ਨਵੇਂ ਵਰਡਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਾਈਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੈਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ। ਹਾਈਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਅਫਿਕਸਿਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਨੈਸ, ਕਾਈਂਡਨੈਸ, ਹੈਪੀਨੈਸ, ਡਾਰਕਨੈਸ, ਸਵੀਟਨੈਸ। ਜਿਵੇਂ ਰੀਡਰ, ਟੀਚਰ, ਡਰਾਈਵਰ, ਪੇਂਟਰ। ਏਬਲ, ਵਾਸ਼ੇਬਲ, ਡਾਊਨਲੋਡੇਬਲ, ਸਰਚੇਬਲ, ਰੀਡੇਬਲ। ਤੇ ਆਈਜ਼, ਮॉडर्नाइज्ड, डिजिटलाइज्ड, ग्लोबलाइज। लैस प्रोडक्टिव किहड़े हुंदे? जिवें th, वार्मथ, विथ, स्ट्रेंथ, हुड, चाइल्डहुड, ब्रदरहुड, नेबरहुड ते डम, फ्रीडम, किंगडम, विजडम। अज असी नवे वर्ड्स बनाउण लई ये नॉर्मली यूज़ नहीं करते। एग्जाम टिप है कि नैस ते थ विचों किहड़ा ज़्यादा प्रोडक्टिव है? तो आंसर होएगा नैस। हुण आपां गल करांगे वर्ड फॉर्मेशन प्रोसैसिस दी। ਇਹ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੇ ਸਕੋਰਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਰਡਸ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਹੈ। 9 ਮੇਜਰ ਵਰਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ, ਮੀਨ ਦੋ ਫ੍ਰੀ ਮੋਰਫੀਮਸ ਜੁੜ ਕੇ ਨਵਾਂ ਵਰਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਨੋਟ ਪਲੱਸ ਬੁੱਕ, ਨੋਟਬੁੱਕ। ਟੁੱਥ ਪਲੱਸ ਬ੍ਰਸ਼, ਟੁੱਥਬ੍ਰਸ਼। सन प्लस फ्लावर, सनफ्लावर। ब्लैक प्लस बोर्ड, ब्लैक बोर्ड। रेल प्लस वे, रेलवे। फुटबॉल। जे पूरे पूरे वर्ड्स जुड़े होन तो आंसर कंपाउंडिंग होएगा। दूसरा अपना आंदा है ब्लैंडिंग। दो वर्ड्स के सिर्फ पार्ट्स जुड़ते हैं, पूरे वर्ड्स नहीं। जिमें स्मोक, स्मोक प्लस फॉग। ब्रंच, ब्रेकफास्ट प्लस लंच। मोटेल, मोटर प्लस होटल। इन्फोटेनमेंट या नेटिकेट। स्मोक पीपीएससी का एक फेवरेट एग्जाम्पल है। क्लिपिंग, लंबा वर्ड बिना मीनिंग बदले छोटा हो जाता है। जिमें एडवरटाइजमेंट तो ऐड बन गया, लैबोरेटरी तो लैब बन गया, जिमनैशियम तो जिम बन गया, तो टैलीफोन तो फोन बन गया। एग्जामिनेशन तो एग्जाम, रेफ्रिजरेटर तो फ्रिज। इतने सिर्फ एक वर्ड छोड़ होंगे, दो वर्ड कंबाइन नहीं होंगे। अगे है बैक फॉर्मेशन। किसी वर्ड तो एक रियल या सपोज अफिक्स को हटा के नवा वर्ड बनता है। जिमें एडिटर तो एडिट, डोनेशन तो डोनेट, बेबी सीटर तो बेबी सिट, टैलीविजन तो टैलीवाइज, ते एंथुजियाज्म तो एंथुजियस। क्लिपिंग ते बैक फॉर्मेशन विच फर्क याद रखो। क्लिपिंग वर्ड विच वर्ड सिर्फ वर्ड शॉर्ट होंदा है, ग्रामर चेंज नहीं होंदी। एडवरटाइजमेंट तो सिर्फ ऐड बनया। बैक फॉर्मेशन विच नाउन तो वर्ब बनता है, एक अफिक्स रिमूव हो जाता है। एडिटर तो जिमें एडिट बनया। उस तो बाद गल करते हैं कन्वर्शन की, जिसनों फंक्शनल शिफ्ट भी कहते हैं। वर्ड की स्पैलिंग सेम रहिंदी है, सिर्फ ग्रामेटिकल कैटेगरी बदल जाती है। गूगल नाउन तो वर्ब बन जाता है। इसी तरह ईमेल, बॉटल, चेयर या टेक्स्ट कोई अफिक्स नहीं लगता, सिर्फ फंक्शन चेंज होती है। एक्रोनिम्स, इनीशियल लैटर्स मिल के एक वर्ड वांगू प्रोनाउंस होंगे ने, जिमें कि नासा, लेजर, यूनेस्को, नाटो, रडार। इनीशियलिज्म ने हुण आपां इहदी गल करते हैं। लैटर्स सैपरेटली प्रोनाउंस होंगे ने, जिमें FBI, ATM, BBC, USA, VIP, DNA। याद रखो नासा एक्रोनिम है, FBI इनीशियलिज्म है। जे लैटर्स मिल के एक वर्ड वांग बोलते हैं तो एक्रोनिम है, तो जे वर्ड अलग लैटर्स अलग अलग बोले जाते हो इनीशियलिज्म है। कॉइनेज, बिल्कुल नवे वर्ड्स बनाए जाते हैं। अक्सर ब्रांड नेम्स होंगे ने, जिमें गूगल, कोडेक, नाइलॉन, एस्पिरिन। इंटरस्टिंग गल यह है कि गूगल कॉइनेज का भी एग्जाम्पल है तो कन्वर्जन का भी। आई गूगल द आंसर। बोरोइंग आ जाती है, दूसरी लैंग्वेजेस तो वर्ड इंग्लिश में आ जाते हैं। जिमें किंडरगार्टन जो कि जर्मन का है, पायजामा हिंदी उर्दू का है, शैम्पू हिंदी का है, बंगलो हिंदी है, गुरु संस्कृत है, खाकी उर्दू पर्शियन है, कैफे फ्रेंच है या रोबोट चेक है। चलो हुण कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन चेक करते हैं आप। स्मोक किस प्रोसेस का एग्जाम्पल है? ब्लैंडिंग। नोटबुक, कंपाउंडिंग। एडवर्टाइजमेंट तो ऐड बनाना, क्लिपिंग। एडिटर तो एडिट, बैक फॉर्मेशन। नासा एक्रोनिम, FBI इनिशियलिज्म। गूगल नाउन तो वर्ब, कन्वर्जन। गुरु इंग्लिश विच किवें आया? बोरोइंग। ते टीचर विच रूट ते स्टैम, टीच ते टीचर। अज असी कवर किया रूट, स्टैम, बेस,
4 ਅਫਿਕਸਿਸ, ਐਲੋਮॉर्फ्स, ਜ਼ੀਰੋਮॉर्फेम, ਮੋਰਫੋਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਤੇ 9 ਵਰਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਰਫੋਲੋਜੀ ਤੇ ਵਰਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਲਮੋਸਟ ਕੰਪਲੀਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਰੈਡੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ 6 ਦਾ ਪਾਰਟ 2 ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟ 1 ਤੇ ਪਾਰਟ 2 ਦੋਵੇਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਏ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੋਰਫੋਲੋਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਰਫੀਮਸ ਤੋਂ ਵਰਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟਸ BPSC, UGC ਨੈਟ, ਸੈਟ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ MA ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿੰਟੈਕਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਫਰੇਜ਼, ਕਲੌਜ਼, ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਟਰਕਚਰ, ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਟਸ, IC ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਬੇਸਿਕਸ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈਲਪਫੁਲ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਚੈਨਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਗੀਤ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਆਪਣਾ ਡਾਊਟ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੀਪ ਲਰਨਿੰਗ, ਕੀਪ ਗਰੋਇੰਗ। ਥੈਂਕ ਯੂ so much for watching.